I do not have words. Really do not have words. सब लोग जानते हैं कि मैं बाबा की दीवानी हूँ, बाबा की पागल फकीरा हूँ, ये सबको पता है। पर बहुत कम लोगों को पता है कि ये फकीरा की जो जर्नी है वो इस मंदिर में शुरू हुई थी। जब पहली बार मुझे इश्क हुआ वो यही हुआ था। So I fell in love with Baba first time in this mandir here in Sector 40. First time was when my eyes met his eyes, you know, and you just fall in love and the whole world ceases to exist. All that matters is that love happens here. So I have talked across the world, I have spoken in mandirs, I have spoken in different places across the world. But the joy of speaking in Sector 40 for me is more than my words can express today. यहाँ पे पंडित जी और भैया great privilege. So first of all, thank you very much for having me here. A big thank you here to Raghavan ji. Thank you so much. And gratitude to Brigadier Manocha who has worked so hard that I was once hoping that the hall is full, more than him. When we have programs in the south of India, when we have programs in Bangalore, Chennai, the halls are always packed. We have always seen more people than space in those places. But because this was Delhi and Noida first time, so we were also a little apprehensive and he has worked so hard, my God, really. Thank you so much, Brigadier Manoj. A big applause for him. I have not met Pandeyji yet, but he has also done so much effort with my team. Thank you so much for your patience and love. Gratitude. Thank you so much. Normally when I speak in other cities, they are not with me. Today Mama Papa is here. Papa. I will represent this stand. See, you have given birth to such a lovely person. A beautiful mother, Sharda. My life. If I'm here today, it is of course because of Baba. But it is because of Mama, Papa first, then Baba. Because they are first my Guru, then he's my Guru. Without them, I will not be. I can't see my Lakshmi Shri, yes, the lady, the beautiful lady out there, who has effort with a beautiful heart of gold. She works day and night just for Baba and his children. All the work in Bangalore that happens at a very large scale is under Lakshmi's, Baba's guidance and Lakshmi's efforts. She has come from Bangalore for the talk. And where is Kaushalya Amma? She is the Nandi mother. Yes, here she is. And they are called my Nandi team. I do not know how this happened. I don't know where I became Shiva. Because they say, the joke started that when you have to send a message to Shiva, अगर आप चाहते हैं कि शिव जी को आपकी बात समझ तो नंदी के कान में बोलते हैं ना. तो my Nandi, it started with Anurag. He's unfortunately not here. His father is in ICU today. We're very, very sad that he's not here. But Anurag is the first Nandi. And then of course there is Lakshmi Smiles. We call her Nandi Smiles because her work is to spread smiles in the world. And Kaushalya Amma is Nandi Ma, being the eldest. So this is the team. And Neha is also called Kutti Nandi in Chennai and Bangalore, which is the tiny Nandi. So that's the team here. And a lot of my healers I cannot introduce, but I can only say if I missed you out, I'm really sorry. Thank you to my friends, family, my dear ones, and those who know me, those who don't know me for being here. Thank you so much. And a big thank you to Babaji for being here. I've told you my journey started here. I'm not 4 to 5. I will take at least 1 hour and share my experiences with Baba, with my journey. Mandir, of course, 2002. People say that, oh, you just met Baba. And I realized that time is not an issue at all. वक्त तो वैसे ही ठहर जाता है जब बाबा मिल जाते हैं. तो कितना वक्त हो गया बाबा को मिले, which is important. Having met Baba, I was so full of Baba, I did not know what to do. इतना प्यार तो मैंने कभी किसी से किया नहीं था. इसलिए समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं. इतना प्यार. कभी और प्यार आए तो बाबा के लिए थोड़ा सा डांस भी कर दो भजन गाते गाते. कभी राधा का पागलपन, कभी मीरा की दीवानगी, सारा कुछ मैंने बाबा के साथ कर लिया. उसके बाद भी मुझे लगे अरे नहीं,
There is too much inside me. क्या करूँ? Madness. Don't know what to do. फिर मैंने सोचा एक दिन लिखना शुरू करती हूँ. Let me start writing about Baba. शायद लिखने से कुछ शांति मिलेगी. My thoughts, my fullness will come out. So I started writing about Baba. कुछ भी हुआ, मैंने सुना, मैंने देखा, मेरे पास में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरी अपनी लाइफ में जो भी हुआ, I started writing that on paper. एंड जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक अजीब सी शांति मेरे अंदर आने लगी, सुकून, यू नो, बहुत अच्छा लगने लगा. ऐसे लगा कि हाँ, बस इसी चीज़ का इंतजार था. रात भरते गए, महीने निकले, साल निकले और सालों साल निकलते चले गए. आई थिंक आई रोट फॉर सम 7-8 years maybe. And I used to write only because I loved Baba. I never wrote for a purpose. I did not write क्योंकि मुझे उसको लिखने के बाद कुछ करना था. मुझे इसलिए लिखना था क्योंकि मैं बहुत बाबा से भर रखी थी. तो उसे, you know, when a vessel is full, you have to pour it out. तो पतीला बहुत भर जाएगा तो पानी को कहीं तो जाना है. तो मैंने लिख के अपने आप को खाली करना शुरू किया कि इतना ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी प्यार बाबा का. 7-8 साल निकल गए लिखते. एक दिन सोचा सारे को कंपाइल करके देखते हैं हो कितना गया. There was this big pile of papers. I was also surprised कि मैंने इतना लिख डाला बाबा के बारे में. Then my little sister Neha said, no, this is only for me. How can I make it into a book? She said, no, Didi, they are Baba's experiences. People will read and feel happy. I said, no, they are love letters for Baba from me. आप अपने प्लेन पर जो किसी को पढ़ाते हो क्या? हाँ कि ना? आप मेरी बात सुन रहे हो ना? फिर आपको जवाब जोर से देना पड़ेगा. हाँ कि ना? तो जब आप नहीं पढ़ाते हो तो मैं कैसे पढ़ा सकती थी? बट देन नेहा इंसिस्टेड एंड मम्मी पापा इंसिस्टेड और सब मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं इसको तो बुक बना दो. देन आई वाज वेरी स्कैर्ड कि अगर मैंने ये बुक बना दी और लोग मेरे पे तो हंसेंगे क्योंकि वो बुक अगर आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पागलपन है. आई एम नॉट राइटिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन. आई एम राइटिंग लाइक समथिंग हु इज इन लव विद बाबा. फिर मैंने बोला ठीक है, ऐसा करते हैं, बाबा से ही पूछ लेते हैं, सारी टेंशन ही खत्म. सो वी डिसाइडेड वी वर गोइंग टू शिरडी. कि मेरे प्लान के शिरडी चलते हैं. अगर बाबा ने बोला तो बुक बना देंगे, पर अगर बाबा ने नहीं बोला तो फिर ये मेरे पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे. सो नेहा ऑल्सो अग्रीड. वी वेंट टू शिरडी. हम समाधि मंदिर गए. जैसे वहाँ पे हम रोते हैं, सभी रोते हैं ना बाबा को देख के, प्यार आता है तो रोना भी आता है. तो बस रोते रोते बोला, बाबा अगर आपको इसको बुक बनाना है तो प्लीज दिस इज योर टाइम, गिव मी अ मैसेज. आपके घर में आपकी शिरडी में खड़ी हूँ. नॉट अ बिग डील. वैसे तो आप पूरा दिन मेडिकल्स करते हो, एक छोटा सा मुझे भी हिंट दे दो. फिर मैंने बोला नहीं छोटा सा नहीं, प्रॉपर हिट होना चाहिए, छोटा वाला नहीं चलेगा. प्रॉपर हिट तभी ये बुक बनेगी, अदरवाइज आई विल रीड, कीप माई पेपर्स एंड रीड देम माई सेल्फ. ये बोल के हमने दर्शन किया तो कुछ भी नहीं हुआ. हाँ तो कोई हिंट मिला, हाँ तो बाबा ने कुछ कहा, हम बाहर आ गए. देन आई टोल्ड नेहा, नाउ यू विल नॉट फोर्स मी. बाबा ने कुछ नहीं बोला. तो शी टोल्ड मी, दीदी अभी वापस थोड़ा जा रहे हैं, अभी तो पहला दर्शन हुआ है, थोड़ा वेट करो फिर सोचेंगे. So we went to the द्वारका माई for दर्शन after that. द्वारका माई में जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए, अब तो काम कर दिया है, तब खुला होता था. तो बाबा जी के चरण वहाँ पे हैं, आपने देखे अंदर फोटो के पास, और साइड में वो जगह है जहाँ बाबा बैठे रहते थे. तो जब मैं वहाँ खड़ी हुई, I just looked at that place, praying to Baba, and I had a beautiful vision. ऐसे जैसे मुझे बाबा नजर आए वहाँ बैठे हुए मुस्कुराते हुए, और बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट, जैसे खुद बैठे हो साक्षात. 1 मिनट के लिए तो आई वाज रियली स्टार्टल्ड. क्या देखा मैंने? देखा तो कुछ नहीं, अब बाबा है भी नहीं, दिख के एंड ही डिसअपीयर्ड. फिर मैं चुप. फिर मैंने कहा, बाबा आपके दर्शन हुए, ये तो बहुत अच्छा है, पर ये काफी नहीं है बुक लिखने के लिए, और कुछ बताइए. दिस इज नॉट इनफ फॉर मी. ये कहकर मैंने अपनी टोकरी वहां पर रखी. आई पढ़ा हिंट तो बाबा दे नहीं सकते. आई वॉज रियली शॉक्ड. मतलब मैं कुछ भी हिंट एक्सपेक्ट कर रही थी, हाथ में पेन तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. देन ऑफ कोर्स आई डिसाइडेड कि नो, दिस हैज टू बी अ बुक. अब तो बाबा का मैसेज है. सो दैट इज व्हाई दिस बुक हैपेंड. दैट इज व्हाई इट गॉट पब्लिश्ड. I wrote to Times of India. My dear friend Anush is here from Times of India. He's sitting there. I forgot to introduce him. He heads our the young man here who Anush Sharma, who is taking our book places. पूरी इंडिया में बुक अगर जा रही है तो it's his effort and hard work. So God bless him and Baba bless him. So Times of India accepted the book and the book got published. And then suddenly there was a uproar. पूरी दुनिया से मुझे चिट्ठियाँ आने लग गई.
मैसेजेस आने लग गए, मुझे पता लगा कि बुक Amazon टॉप 50 इंटरनेशनल टॉप 50 में चली गई है, बेस्ट सेलर बन गई है। आई डिड नॉट नो बेस्ट सेलर क्या होता है, आई जस्ट इवेंचुअली केम टू नो अबाउट इट। पर मजे की बात ये थी कि पूरी दुनिया ने बोला माय गॉड आपने पढ़ा नहीं, जया वाही ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है। अभी राघवन जी ने भी यही बोला, जया वाही का नाम मैंने सुना, शी इज रिटन अ वेरी नाइस बुक। किसी को ये पता ही नहीं लगा कि बुक उन्होंने लिखी है, सिर्फ मैंने तो हाथ चलाया था, मुझे नहीं पता वो बुक कैसे लिखी गई। अगर मैंने लिखी होती तो मैं आज भी उस बुक को पढ़ पढ़ के ऐसे रोती नहीं जैसे मैं रोती हूँ। ऑनेस्टली मुझे फ्लाइट पे एयर हॉस्टेस भी आके कहती मैम आर यू ओके, यू नीड वाटर, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी पढ़ के रो रही होती हूँ। तो अपनी बुक पढ़ के पीपल डोंट क्राई, इट इज बिकॉज ही हैज रिटन एवरी वर्ड ऑफ दैट बुक, आई रियली हैव नॉट एंड आई मीन इट। इट इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई हैव जस्ट बीन दैट आई थिंक लाइक वी से द चैनल, he has just flown through me beautifully and I'm blessed कि बाबा मेरे से निकल के और उस बुक तक पहुंचे हैं, वो blessing जरूर मेरी है, but other than that it is him. So that is Sai Baba is still alive, a book by Baba, for Baba, with Baba, his book for his children, me just being a channel. Now that I have told you about the book, let me share some of my experiences with the book. I have lots to share with you all. I want to share Babaji's messages, my journey with Baba, and a lot of things about the book also. हाँ जी, मैं एक्चुअली ना मैं आज पहली बार हिंदी में बोल रही हूँ। मुझे कभी कोई नोएडा में बुलाते नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या करूँ। इसलिए वो हिंदी से इंग्लिश स्विच ऑफ हो जाता है बार बार, सॉरी फॉर स्विचिंग ओवर, आई विल ट्राई अगेन। आप समझ रहे हैं वैसे मैं जो बोल रही हूँ? मिक्स एंड मैच होगी। So English will be fine. actually there is a request for Hindi also, so I'm trying to, हाँ जी हिंदी इंग्लिश दोनों। नहीं समझ आए तो रोक दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पहले क्या बताऊं, बुक के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं? अपने बारे में बताती हूँ। चलिए आई स्टार्ट विद माय सेल्फ। मैं बहुत ही नॉर्मल सी लड़की थी, यहाँ मंदिर में आया करती थी, यहाँ पंडित जी सब लोग मुझको जानते हैं, सब मुझे देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं यही इसी मंदिर में बोलने आई हूँ। दे आर वेरी हैप्पी। जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल विद अ वेरी nothing very big about me. But I think the most beautiful thing that has happened is that I fell in love with Baba. प्यार हम सब करते हैं, इश्क हम में से बहुत कम करते हैं। जिसने बाबा से इश्क कर लिया उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी, मेरी भी बदल गई, उसकी भी बदल गई। कभी बाबा मुझे सपनों में मिलने आते थे, तो कभी मेरे को शिरडी में बाबा कहते थे मैं आऊँगा। मैंने से कहते थे, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं शुरू से जब से छोटी सी थी तो मैं भगवान जी से बातें करती थी। छोटी थी तो माता से बातें करती थी, कभी कृष्ण जी से करती थी, बड़ी हुई तो बाबा से करने लगी। पहले फिर जब हम बड़े होते हैं फिर लगता है कि ये वहम तो नहीं है, एम आई इमेजिनिंग, या बाबा सच में मुझसे बात कर रहे हैं। बट देन आई थिंक माई जर्नी विद बाबा बिगैन। बाबा ने मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए, ऐसी अनोखी चीज़ें मेरे साथ हुई कि मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो बाबा ही बोल रहे हैं, मैं उन्हीं से बात करती आई हूँ और उन्हीं से कर रही हूँ। आपका हॉल तो खुद से भी ज़्यादा फुल हो गया मनोजा जी, अभी हमें हॉल बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट इधर ही बैठा हुआ। हाँ जी, so coming back to my journey with बाबा, जब मैंने बाबा से मेरी बुक निकली उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग किताब पढ़ रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा और बाबा जी का कनेक्शन कुछ बढ़ता सा जा रहा है, कुछ प्यार बढ़ रहा है, कुछ मेरी बाबा की मैसेजेस आना, बाबा की मेरी को जो टीचर बताते हैं, कभी मुझे मेरे पिछले जन्म का विजुअल दे देते हैं, पूरा दिखाते हैं मैं कहाँ थी, कौन थी। बहुत अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। आई डिड नॉट रियलाइज कि क्या हो रहा है। वैसे आज जो बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने आज तक 40 सेक्टर मंदिर जा रही हूँ जहाँ से जर्नी शुरू हुई है, सो आई मे टॉक अबाउट इट। बट विदाउट रियलाइजिंग आई हैव गॉन टू शिरडी। बाबा ने मुझे कहा था मुझे मिलने आएंगे, चाय पीने आएंगे, और शल्या अम्मा मेरे साथ थी उस दिन। बहुत ही अजब एक्सपीरियंस हुआ मेरा। एक बुजुर्ग आए मेरे पास, आशीर्वाद दिया दूर से, और सुबह से जितने लोग, बाबा ने कहा था मैं सफेद कपड़े पहन के आऊँगा, शिरडी में आऊँगा और
चाय पीने आऊंगा। अब मुझे बताइए, शिरडी में सफेद कपड़े पहन के तो इतने लोग चाय मांग लेते हैं, अब बाबा कौन से हैं कैसे पता लगेगा? अगर आपने मेरी बुक पढ़ी है, देयर इज अ स्टोरी वेयर बाबा केम टू मीट मी, मैंने पहचाना नहीं था, तो मैं तो बहुत डरी हुई थी कि एक बार तो गलती हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी व्हाइट कपड़ों में मुझे दिखते थे, मैं बाहर जाके खड़ी हो जाती थी कि चाय मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। कितने बाबा मिले, या तो वो चाय नहीं पीते थे या तो व्हाइट कपड़ों में नहीं होते थे, तो कॉम्बिनेशन वॉज नॉट कमिंग। शाम को गुरुस्थान से मैं बाहर निकल रही थी, तो एक बुजुर्ग बाबा व्हाइट कपड़ों में ऐसे उन्होंने बुलाया, कौशल्या अम्मा को, मुझे नहीं बुलाया, शी इज योर ओनली, और इनको एक नीम का पत्ता दिया। और मैं उनको देखती नहीं, मुझे देखा भी नहीं, मैं सोचा ये तो नहीं हो सकते, ही इज नॉट इवन पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स मी। फिर मैं बाहर जाके बैठ गई। वी वर सिटिंग ऑन द स्टेप्स आउटसाइड द बाबा का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर। थोड़ी देर में देखा, फिर चल के आके पास में बैठ गए। तो फिर मुझे कहते हैं, घर पे ऊपर झाड़ू है? और झाड़ू मतलब ऊपर से झाड़ू लेके झाड़ू करना है बाबा? ऊपर घर पे झाड़ू है? I again looked at him, not understanding. Then he did this. Stretch your hand. So I stretched my hand. He gave me something. I said, बाबा ये क्या है? शिरडी के नीम के पेड़ का बीज है। तेरे घर पे ऊपर बीज लगाना, झाड़ू उगेगा। झाड़ू की मैं झाड़, वो मैं समझी नहीं उनकी लैंग्वेज में। उन्होंने मुझे एक नीम का बीज दिया। उनको कैसे पता कि मेरे घर में ऊपर गार्डन है? पहली बात तो आई हैव अ पेंट हाउस, ये तो किसी को नहीं पता कि मेरे घर के ऊपर गार्डन है। अगर वो सिर्फ कहते झाड़ लगाना, ऊपर झाड़ लगाना, नीचे बाबा रहेगा। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे बाबा की साष्टांग इतनी बड़ी साक्षात 4.5 फुट की मूर्ति है, और ऊपर नीम का पेड़ लगाने को बोला। एंड अम्मा जी वर वेरी सरप्राइज। अच्छा, अम्मा को मैंने कुछ नहीं बताया था कि वो भी ढूंढने लग जाएंगे, नो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो फिर मैंने उस टाइम पे उनको बोला, देखो अम्मा, बाबा ने आने से पहले मुझे कहा था कि व्हाइट क्लोथ में वो आएंगे और चाय मांगेंगे, इन्होंने नीम का बीज भी दे दिया, ये तो नहीं है। देन अम्मा ऑल्सो गॉट वेरी नर्वस, शी वाज रियली नर्वस, रोना शुरू कर दिया इन्होंने तो वहां पे, इसी बाबा इसी बाबा। नीम का बीज देके वो चले गए। मैंने कहा अम्मा ये भी नहीं थे, चाय नहीं मांगी, और हम तो अंदर है, अंदर तो चाय वैसे भी नहीं मिलती गुरुस्थान के पास, तो ये बाबा नहीं हो सकते। We were still sitting and thinking, and he walks back to me. दूर से मुझे देख के और अम्मा को देख के कहते हैं, बाबा के भोजनालय में 1 रुपए की चाय मिलती है, पिलाओगी क्या? Oh my God! I just jumped up. Amma also crying jumped up. I said, बाबा 1 रुपए नहीं, 10 वाली भी मिलती है, मैं वो भी पिलाऊंगी, आप पियोगे? आप पिलाओगे? मैंने कहा हाँ। He actually walked with us. We took him outside, got him food. We took him to a restaurant. मुझे लगता है वो मुझे जान के वहां लेके गए, सीढ़ी चढ़ा के ऊपर लेके, कहते मैं यही खाना खाऊंगा। मैंने कहा आप खाना लीजिए, पहले चाय मंगाओ। तो रेस्टोरेंट वाले कहते हैं, मैम वी डोंट प्रोवाइड टी, यहाँ पे चाय मिलती ही नहीं है। फिर हमने पैसे दिए, लड़का बताया, चाय मंगाई, पूरा तंग करके उन्होंने चाय पी। बट ही हैड टी एंड ही हैड दिस ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हिज फेस। हम लोगों ने बोला हम आपकी फोटो लेटर भी ऑब्जर्व, तब तो हम लोग बहुत घबरा रहे थे। So he came. We have a neem tree in the house now. मेरे माली भैया ने उसके साथ तुलसी भी लगा दी है, तो नीम और तुलसी एक साथ उग रहे हैं। I don't know why he did that. And actually में हमने बहुत बाद में रियलाइज किया कि जो उन्होंने कहा था ऊपर नीम उगेगा, नीचे बाबा रहेगा, ऊपर नीम उग रहा है, नीचे बाबा रह रहे हैं, that is actually become true now. वहां से जब मैं वापस आई, from that particular journey, उसके बाद मेरे साथ बहुत अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। कभी मेरी बैक में बहुत एनर्जी लगती थी, मेरी स्पाइन में, कभी मेरे को ऐसे वाइब्रेशंस, पल्सेशंस फील होती थी। Then I started getting into some strange things started happening. I started getting into trances. मैं खो जाती थी घंटों तक, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये चीजें मैंने मूवीज में देखी थी, सुनी थी, मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे भी हो सकती है। जब मैं छोटी होती थी तो हम सुनते थे ये इस टाइम पे ट्रांस में चले गए हैं। मुझे ट्रांस का हिंदी वर्ड नहीं आता, सॉरी, आई डू नॉट नो। एनीबडी नोस ट्रांस को हिंदी में क्या कहते हैं? लुप्त हो जाना, लीन हो जाना, समाधि में चले जाना, लीन हो जाना। मतलब एक अजीब सी समाधि थी जिसमें मुझे समझ नहीं आता था क्या हुआ। और फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया, जब मैंने मुंह खोला उसके बाद उस समाधि में, तो मेरी जगह बाबा की आवाज निकलने लगी।
ये बात मैं सबसे पहली बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, पर बाबा से परमिशन लेके बोल रही हूँ। मेरी फैमिली सब लोग बहुत शॉक हो गए कि ये क्या हुआ। जब मुझे भी होश आया तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं डर गई कि ये क्या हुआ। पर फिर समझ में आने लगा, अब तो बहुत टाइम निकल गया। अब तो मेरी बहुत सारे हीलर्स हैं, मेरी फैमिली है जिन्होंने ये सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो जब बाबा का मन करता है तो वो ये ऐसे मेरे अंदर आते हैं कि मेरा पूरा जो शरीर है वो खुल जाता है, ओपन अप। मेरी शोल्डर्स खुल जाती हैं, मेरी स्पाइन वाइब्रेट करने लगती है। और जब मैं मुंह खोलती हूँ तो बाबा बोलते हैं, कभी किसी का मैसेज देते हैं, कभी किसी का दुख दूर करते हैं, कभी पूरे संसार के लिए मैसेजेस देके चले जाते हैं। It's been an amazing journey and I'm again repeating, if I have to be asked, I'm not qualified for this at all. मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। कहते हैं पिछले जन्म में किया होगा, वो तो मुझे पता नहीं है। इस जन्म में तो मैंने सिर्फ इनसे इश्क किया और कुछ नहीं किया। और उसके बदले में जो मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला है, या जो ये ब्लेसिंग है मेरी लाइफ की, कि मेरे थ्रू इतने लोगों की हेल्प आज हो पा रही है, आई थिंक दिस इज जस्ट हिज ब्लेसिंग दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई कैन डू। इट्स ओनली हिज ब्लेसिंग। जब से मेरी हीलिंग जर्नी चल रही थी, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट में आई सीन, इट्स बीन रिटन इन द बैनर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। सो आई मस्ट शेयर टुडे विद यू व्हाट इज माय हीलिंग जर्नी, व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ। यही कोई 10-12 साल पुरानी बात है, जब मैं बाबा से मिली थी। तब एक दिन मम्मी जो है मेरी, ये अपने डॉक्टर को मिलने के लिए हॉस्पिटल गई, ECHS में, देयर फ्रॉम द आर्मी। तो वहां पर जब ये गई तो जो डॉक्टर अंकल थे, तिवारी अंकल, आई रिमेम्बर, गॉड ब्लेस हिम, ही इज नो मोर नाउ। तिवारी अंकल ने बोला मम्मा को कि जनरल कॉन्वर्सेशन, कि मेरे फ्रेंड्स के साथ ही केम होम रात को करीबन 10 बजे। आई विल टॉक अबाउट इट दिस इज आई वांट टू गिव इट। सो मम्मा ने उसको बोला, ऋषि की मम्मा ने, कि बेटा नीचे जाके गाड़ी पार्क कर आ जाओ। रात का टाइम था, ही वेंट डाउन, गाड़ी पार्क, नीचे गाड़ी तो पार्क कर ही रहा हूँ। he said मम्मा को, मम्मा इज वरीड, they said we are just here, come for 5 minutes। ऋषि ने गाड़ी निकाली, ऋषि चला गया। जाते जाते बाहर का दरवाजे को कुंडी मार के चला गया, बिकॉज मस्कीटोज आते हैं दरवाजा खुला हो तो। प्लीज रोना अभी से मत शुरू करो, दिस बी वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए तो बोलना भी मुश्किल है ना। सो बी स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके। सो ऋषि वेंट, आफ्टर सम टाइम Auntie received a call on her phone. When she picked up the phone, किसी ने बोला कि उसके बच्चे का है शायद, उसके फोन में होम करके ये नंबर फीड हो रखा है, तो ये आप है, आपका बेटा है क्या? तो आंटी गॉट वेरी एंग्री, शी से मेरा बेटा मेरे घर पे है नीचे, आप ऐसे रॉन्ग नंबर फोन मत करिए। शी डिडंट इवन रियलाइज द कॉल वाज कमिंग फ्रॉम राइट कॉल, शी डिस्कनेक्टेड। दे अगेन कॉल्ड वन मोर टाइम, मैडम प्लीज फोन मत काटिए, यहाँ पर एक बच्चा सड़क पर है, ही इज फिल्ड इन अ पूल ऑफ ब्लड, उसके पास उसकी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर ये है, ये गाड़ी खड़ी है, क्या ये बच्चा आपका है? जब आंटी ने डिटेल सुनी, शी वाज शॉक्ड कि ये तो ऋषि की गाड़ी है, हमारी गाड़ी है। शी सेड आप लोग कहाँ पे हैं? ही टोल्ड हर हम इस रोड पे हैं, जो NMC हॉस्पिटल है ना, उसके जो पीछे वाली रोड है, जो एक 31 सेक्टर और आई डोंट नो व्हिच सेक्टर है, निथारी रोड जो है, उस रोड पे द चाइल्ड वाज लाइंग। द मदर सेड यू स्टे देयर, वी आर कमिंग। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा ही नहीं खोला, वो तो बाहर से कुंडी मार के गया था। देन दे स्पोक टू द नेबर्स, फोन किया, नेबर्स ने आके खोला। आई थिंक तिवारी अंकल वाज द नेबर, द डॉक्टर, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। एक्चुअली ये बातें मैं पहली बार बोल पा रही हूँ, क्योंकि साउथ में बनाई टॉक पीपल डोंट नो व्हाट इज NMC एंड निथारी, यू नो, सो आई कैन शेयर दिस विद यू एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। तो उसको NMC लेके गए। जब तक अंकल आंटी और ऋषि की सिस्टर अमृता जब NMC पहुंचे, तब तक वहाँ पर ही वाज वेटिंग टू बी टेकन इनसाइड। जो मुझे उन्होंने बताया कि ही वाज फिल्ड विद ब्लड, हेड ओपन, टोटली इंजर्ड, एंड दे वर शॉक्ड कि अभी तो ये हंसता खेलता गया था, क्या हो गया। डॉक्टर्स टुक हिम इनसाइड। काफी घंटे अंदर रहा ऋषि। रात को तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स भी नहीं होते, NMC तो इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था उस टाइम पे, डॉक्टर फॉर 10-12 इयर्स बैक। फाइनली अर्ली मॉर्निंग आके डॉक्टर्स जब बाहर आए, जब ये लोग घबरा के वेट कर रहे थे क्या होगा, डॉक्टर ने आके बोला वी आर रियली सॉरी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
वो बहुत क्रिटिकल है। हमें उम्मीद नहीं है कि हम इसे बचा पाएंगे। अगर आप चाहें तो किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करके देख लीजिए, पर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा। ही इज दैट बैड। उसका ब्रेन टोटली डैमेज हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है और खुल सा गया है, इतना ज्यादा मतलब डैमेज है। आई डोंट थिंक वी कैन सेव हिम। ऑब्वियसली एवरी पेरेंट विल ट्राई हिज और हर लेवल बेस्ट। एम्बुलेंस मंगवाई गई फटाफट। वो इतने शॉक में थे पेरेंट्स कि हमने तो सोचा था कि ये बच्चा मतलब ठीक है एक्सीडेंट हो गया, यू डोंट थिंक द वर्स्ट विल हैपन। दे रश्ड हिम टू अपोलो हॉस्पिटल हियर इन सरता विहार। वहाँ लेके गए, वहाँ डॉक्टर्स ने देखा उसको, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने देख के बोला कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वी आर नॉट श्योर हम क्या कर पाएंगे बट वी विल ट्राई। उस टाइम पे जब ये सब यहाँ चल रहा था हॉस्पिटल में, मम्मा घर आए आफ्टर हैविंग स्पोकन टू हर डॉक्टर। मम्मी ने आके पापा को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना, डॉक्टर तिवारी ने बताया कोई बच्चा है ऋषि करके, ऐसे करके हुआ है, कांट वी डू समथिंग टू हेल्प हिम। पापा इमीडिएटली सेड ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प। ऐसा करते हैं बाबा की विभूति भेज देते हैं, हमारे तो सब कुछ बाबा ही हैं, विभूति से बढ़ के तो कुछ नहीं है, भेज के देख लेते हैं। तो बाबा पहुंच गए अगर तो जरूर कुछ अच्छा होगा। मम्मा लकीली एड्रेस पहले ही लेके आई थी इन एंटिसिपेशन कि वी मे हैव टू सेंड हेल्प। So they called the boy who works for us, and they told him कि बेटा ये एड्रेस रहा, ये विभूति रही। पापा wrote a letter there and he wrote down that हम आपको जानते तो नहीं है, पर हम साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं और हमें प्लीज आप फेथ से बच्चे के फोरहेड पे लगा दीजिए, हो सके तो उसके कुछ सम इन हिज माउथ, बाबा अच्छा करेंगे। ये कहके दे सेंड द विभूति। भेजते भेजते तक लास्ट मिनट हिच कि अगर वो बाबा को नहीं मानते हुए, अगर विभूति की डिसरिस्पेक्ट हो गई, अगर उन्होंने ऐसे ही रखा कि ये तो बाबा की होती है, हम ऐसे नहीं रखते। लास्ट मिनट सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस टाइम पर मैं किसी ऑफिस के काम के लिए बाहर निकली हुई थी और मैं बिल्कुल यहीं से निकल रही थी। आई डू नॉट रिमेंबर व्हाई बट आई वाज क्रॉसिंग दिस रोड। I stopped here and thought, oh my God, I'm outside Baba's mandir. I didn't realize that I'm taking this road. I parked my car, I ran inside के फटाफट एक दर्शन तो बनता है। मैंने अंदर पैर रखा तो आरती शुरू हो गई। अब मैंने सोचा मम्मी पापा को मैंने कहा था I will reach, it was lunch time, I will be back by lunch। वो तो फिक्र करेंगे आधा घंटा कहाँ चलेंगे, आरती में से तो आप फोन भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फोन मिलाया मम्मा पापा को और आरती आगे कर दी कि सुन के समझ जाएंगे आए हैं बाबा मंदिर। वहां पे पापा एंड मामा वर टॉकिंग, शारदा भेजे नहीं भेजे, भेजे नहीं भेजे, तब तक फोन बजा। इन्होंने फोन उठाया तो आगे से क्या, आरती, बाबा की आरती। पापा से वी हैव अ मैसेज, विभूति इज गोइंग, सो द विभूति वाज सेंट टू ऋषि। आफ्टर दैट वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे वो लोग कौन है। हम लोग फिर भी उसके लिए प्रे करते रहे। हम लोग शाम को पूरी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स आके बैठ जाते थे और हम बाबा की चैंटिंग करते थे ऋषि के नाम से। वी यूज्ड टू कीप प्रेइंग फॉर हिम। ना तो हमने कभी देखा था ना मिला था, बट वी प्रेड फॉर हिम। ना हमें पता था कि हमें पता भी लगेगा वो बच्चा अब है भी कि नहीं है, क्या हुआ है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। तब कोई 3-4 दिन के बाद हमारे घर की बेल, सो वी लुक्ड एट हर, हाँ जी आपसे किससे मिलना है, ऑब्वियसली हम तो आपको जानते नहीं ना, नया कोई आपके घर से आया। शी सेड, my name is Amita, I'm Rishi's mother. I have come to meet you. We were all very taken aback. We opened the door, took her inside the house, welcomed her, and we asked, how is Rishi? We were all scared to ask, but we asked, how is Rishi? So auntie it took courage for her to speak, obviously, poor thing. After undergoing all that, she said, I'll share with you what happened exactly. Then she told us that when she was leaving for the hospital, somebody came and gave her that packet of vibhuti. She did not know where it came from, who the people are. उन्होंने पर्स में डाला. She left for Apollo. Apollo में when they took Rishi, he started getting convulsions. No oxygen in the brain. The brain is damaged. His body started going 4 to 6 feet above the bed. पूरा शरीर 4 से 6 फुट ऊपर उठता था, फिर नीचे गिरता था, फिर उठता था, फिर गिरता था। He went into severe convulsion. डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी, convulsions रुक ही नहीं रहे थे। They thought he's collapsing.
हम कुछ भी करके रोक नहीं पा रहे हैं। उस टाइम पर आंटी को ध्यान आया, मुझे तो किसी ने एक चिट्ठी और एक पैकेट भेजा है विभूति का। वो बाबा को नहीं मानते थे। आंटी कहते हैं उनके फादर बाबा को मानते थे, ऋषि के नाना, पर आंटी लोग जानते थे शायद बाबा को, माना कभी नहीं था इतना। उन्होंने पैकेट निकाला और जाके पढ़ा कि क्या लिखा है, माथे पे लगानी है। जैसे ही ऋषि के माथे पे विभूति लगी, ऋषि शांत होना शुरू हो गया, कन्वल्जन्स रुकने शुरू हो गए और वो बच्चा शांत होकर बेड पर लेट गया, सिर्फ उन्हीं टच करने। बाबा ने हमें विभूति दी है, वो खुद वो उदी है, ही इज दी उदी। डॉक्टर्स ने उसके बाद कन्वर्जन्स तो रुक गए, पर ऋषि की हालत फिर खराब होने लगी बहुत ज्यादा। रात हो गई, रात को डॉक्टर ने कहा कि ऋषि को आप घर ले जाइए, सॉरी आंटी को बोला, आंटी को कि आप घर जाइए। पापा ने कहा ऋषि फादर, मैं यहाँ पे रुकना हूँ आईसीयू के बाहर, बिकॉज यू कांट स्टे। आंटी सिस्टर हैड कम, डॉटर वाज देयर, आप सब लोग घर जाइए और घर पे आराम से रात काट के सुबह आ जाना। ये लोग सब घर चले गए, अंकल हॉस्पिटल में रुक गए। रात को डॉक्टर्स आए आंटी के पास और उन्होंने आके बोला कि वी आर वेरी वेरी सैड टू शेयर दिस विद यू, हमें बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। हिज ब्रेन इज गोइंग, हिज ब्रेन डेड कंप्लीटली। वो वैसे तो सांस ले रहा है अभी भी, हल्की, बहुत हल्की, पर हिज ब्रेन इज कंप्लीटली गॉन। तो उसको हम मेडिकल स्टेट में ब्रेन डेड कहते हैं। और who was working as a neurophysician in that hospital in Apollo, आज भी वो डॉक्टर वही काम कर रहे हैं, एज ए न्यूरोफिजिशियन। उन्होंने बोला कि आप ऋषि को, आप जल्दी से आइए, मुझसे अब ये चीज संभाली नहीं जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि वी हैव टू टेक द बॉडी, ये पेपर वर्क वगैरह, आई एम नॉट इन अ स्टेज, यू प्लीज कम एंड डू इट योरसेल्फ। द हस्बैंड एंड वाइफ रश्ड मिडल ऑफ द नाइट टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने आके ऋषि की आईज वगैरह चेक करी, तो उन्होंने बोला कि इसमें कभी जान है, आप क्यों कह रहे हैं कि इसको लेके जाओ, जैसे जान अभी है, पर एक सिक्किंग दिख रहा है कि उस बच्चे की ब्रेन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको मैं ठीक कर सकूं। आप क्यों इतना पैसा वेस्ट करना चाहते हैं? मैं सर्जरी करूंगा तब भी यही जवाब है मेरा वापस आके, व्हाई आर यू पुटिंग द चाइल्ड थ्रू दिस एंड योरसेल्फ थ्रू दिस, आप ले जाइए। न्यूरोफिजिशियन फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं, आप फिर भी सर्जरी करिए, कम से कम हमें ये दुख तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश ही नहीं करी। कोशिश तो करनी बनती है ना, आप कोशिश करिए, पैसे हम भर देंगे। जब ये सब हॉस्पिटल में चल रहा था, ऋषि को वो वापस अंदर सर्जरी के लिए ले गए। घर पर आंटी सो रखे थे। आंटी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपने में एक फकीर देखे जो सफेद कपड़े पहने हुए थे, सर पर पटका, फकीरी लिबास, और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आंटी ने पास से जाके देखा तो ऋषि को उन्होंने अपनी गोद में लिटाया हुआ था, उसका सर जो था उनकी गोद में था। आंटी ने गौर से देखा तो पहचाना, अरे ये तो साईं बाबा है शिरडी वाले। तो आंटी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। तब उन्होंने देखा कि ऋषि के जो सिर के पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो पूरे बाबा के आसपास गिरे पड़े हैं। बाबा एक हिस्सा उठा रहे हैं, उसको अंदर लगा रहे हैं। दूसरा हिस्सा ले रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। आंटी रोते हुए बाबा उसके सिर को जोड़ते रहे। लास्ट में उन्होंने आंटी को बोला शांत हो जाओ, और उन्होंने पूरा सिर ऐसे करके जोड़ दिया और बोला क्यों रो रही हो, मैं हूं ना, दिया बुझ रहा है पर मैं नहीं बुझने दूंगा, वक्त लगेगा पर वो ठीक हो जाएगा। ये बोल के आंटी की नींद खुल गई। जब वो उठी तो वो बहुत क्या हुआ, something is not okay with Rishi, something is not okay with Rishi. She started crying. क्या हुआ? मैंने सपना देखा, उसका सिर खुला हुआ था, बाबा ने बोला वक्त लगेगा पर ठीक हो जाएगा, it will take time, it will be fine. तो उन्होंने बोला अच्छा बोला ना बाबा ने, आप लोग क्यों रहे हो? नहीं हॉस्पिटल फोन करो, हॉस्पिटल फोन करो। उन्होंने हॉस्पिटल फोन मिलाया, वहाँ पे अंकल फोन नहीं उठा रहे थे। अब सुनिए अंकल क्यों फोन नहीं उठा रहे थे। उसी समय अंकल के सामने डॉक्टर्स बाहर निकल के और बोला कि 30 साल के मेरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा, वक्त लगेगा मगर ऋषि ठीक हो जाएगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है। आज पहली बार वो बच्चा ऋषि हमारे पास यहीं पर है, आप उसको देख सकते हैं।
ये हमारा मिरेकल चाइल्ड ऋषि हमारे बाबा का बच्चा, और ये अमिता आंटी इसकी वो मम्मा जिनको मैं रुलाती रहती हूँ। सॉरी आंटी। आंटी आज भी रो रही है, जब भी मैं सुनाती हूँ खुद भी सॉरी करती रहती हूँ और रुला भी देती हूँ। आंटी आज मैंने बहुतों को रुला दिया यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी। पर ये बच्चा ये है It is not only that today we are crying. When we read his book, that hundreds so every time, a number of times we are. And give blessings to Rishi. It is my bliss. You know, I cannot express the feeling of. I was being saying sorry because Auntie was sitting here, and to repeat this in front of her and take her through that whole experience is very sad. But because I must speak to you about my healing journey, I have to speak. अब ऋषि ठीक हो जाएगा, हमारा ऋषि ठीक भी हुआ। ऋषि घर आ गया, हम तो पहले कभी ऋषि को मिले नहीं थे। आंटी उस दिन मिलकर हमें ये सब बता के गई। Then later I went to meet Rishi in his house, very excited that he's the miracle boy. बाबा ने जिसे बचाया है। I called up auntie after that. I said I want to come home and meet Rishi. भाग के गई, दरवाजा खुला। आंटी कह रहा है ऋषि, हाँ हाँ आंटी बहुत प्यार से अंदर ले गए। He's in the room inside. जब मैं अंदर पहुंची तो वहाँ पे हॉस्पिटल बेड लगा था और उस पे एक पैक ऑफ बोन्स पड़ी हुई थी। ऋषि तो नहीं था वो, मुझे नहीं पता। इतना ही है अंडरगॉन दिस चाइल्ड। सिर्फ वहाँ पे मतलब ऋषि का जो सिर था वो बिल्कुल ही वाज आउट ऑफ कंट्रोल, देयर वाज पैरालिसिस और सलाइवा निकल रहा था और सिर्फ हड्डियाँ दिख रही थी वहाँ पे, वो भी इंजर्ड हर जगह पे। गले में एक बड़ा सा होल था। मैं घबरा गई देखकर कि मैं तो सोच रही थी मैं एक मैजिकल बच्चे को मिलने जा रही हूँ, ये क्या है। बहुत परेशान हुआ मैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भजन करते थे, आई डोंट नो उनमें से कोई है कि नहीं है। बहुत भजन यहाँ भी किया उन्होंने, बीपी मुखर्जी, नीतू एंड मुखर्जी, जी वो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे। उनको मैंने बोला कि आप ऋषि के घर पे क्या एक भजन करेंगे। अगर आप भजन करोगे, मेरा ये मानना है कि भजन से जो एनर्जी जनरेट होती है, इट्स वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो जब हम किसी बीमार के घर पे भजन करेंगे तो इतनी अच्छी एनर्जी आएंगी उसके लिए। सो आई रिक्वेस्टेड देम फॉर भजन। उन्हीं दिनों की बात है, मुझे बाबा से मैसेजेस आया करते थे। बाबा, ये ऋषि से थोड़ा हट के आपको बता रही हूँ कि जब भी मैं मंदिर के कमरे में पैर रखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता था बाबा कह रहे हैं कोई भी बीमार है तो अपने हाथ उस पर रख दो, वो ठीक हो जाएगा। Put your hands, if somebody is not well, they will be fine. I used to say, बाबा मेरे हाथ रखने से तो कैसे ठीक होगा। फिर वही मैसेज। So many times I have heard that message, so many times that I cannot tell you. एक दिन मम्मा के पीठ में बहुत दर्द थी। इनकी वो नस पे नस चढ़ती है कहते हैं ना, नर्व पिचेस। ये जोर से चिल्ला रही थी, जल्दी से कुछ करो, मेरी पीठ में कुछ हो गया, मैं उठ नहीं पा रही, हिल नहीं पा रही, बहुत जोर से रो रहे थे। अब घर पे कोई नहीं था। उस टाइम मेरे को बहुत घबरा गई, व्हाट शुड आई डू विद मम्मा। फिर तब मुझे ध्यान आया बाबा हमेशा कहते हैं पुट योर हैंड्स, तो पर्सन विल हील। मम्मा के साथ तो रिस्क किया जा सकता है, बाहर तो रिस्क लेने में डर लगता है। आई सेड बाबा आई एम पुटिंग माय हैंड्स, अगर आपने ठीक करना है दिस इज योर चांस। आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। तब तक मम्मा ने अचानक जोर से जो कह रहे थे चिल्ला रहे हैं दर्द में, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और फिर मम्मा कहते हैं हॉट वाटर रखी मेरे पीठ पे। नहीं मम्मा मेरे हैंड्स हैं इतने गर्म। हाँ मम्मा इतने गर्म। मम्मा ठीक हो गए। तब मैंने रियलाइज किया कि बाबा की कोई ब्लेसिंग है। दिस इज इमीडिएटली व्हेन आई मेट बाबा। जब बाबा मुझे मिले आई रियलाइज दैट आई हैव अ ब्लेसिंग। बाबा से पूछा गो हील ऋषि। बाबा हील ऋषि मतलब व्हाट? गो हील ऋषि। आई सेड बाबा सर्दी जुकाम तो ठीक है, उसको तो मैं देख के भी कर जाती हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो। ये आखिर में ऐसे सामने बैठ के बात हो रही है हमारे। बाबा प्लीज ऐसे काम मुझे मत दो जो मैं नहीं कर सकती। तो बाबा वैसे ही अपना टिपिकल स्माइल देख मुझे कह रहे हैं मेरे पे विश्वास नहीं है। तो बाबा ऑब्वियसली है, देन गो हील ऋषि। ही इज वेरी स्मार्ट, ओके। इधर या उधर से मना तो वो लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, अब आप कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ, पर मुझे नहीं पता क्या करना है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है, मैं चले जाती हूँ, प्रे कर दूँगी। मैंने स्पोक टू आंटी एंड अंकल। ऐसे आंटी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं आके ऋषि को हीलिंग दूँ? आंटी सर आई बी वेरी हैप्पी बेटा, आपको जो करना है आप करो, वो ठीक हो जाए, हमें और क्या चाहिए। तो मैंने ऋषि को जाके हीलिंग देनी शुरू की।
अब मुझे तो हीलिंग का मतलब ही तब नहीं पता था, बट आई वुड जस्ट गो एंड लुक एट ऋषि, एंड आई फर्स्ट टाइम वेंट एंड आई थॉट मैं इसमें हील करूं, नेक को करूं, किस चीज को करूं, एवरीथिंग वाज इंजर्ड। फिर मैंने ऋषि को जाके पूछा, बेटा आज पूजा दीदी मैं आपको ठीक करने के लिए आई हूँ, मैं आपको हीलिंग दे दूँ, प्रे कर लूँ मैं आपके ऊपर। तो he didn't reply, he just looked at me, मैं प्रे कर लूँ? His eyes answered, there was a smile in the eyes. Then I realized कि ये तो बोल ही नहीं सकता। Then I went to auntie and asked, auntie he can't speak? Auntie said, no बेटा he can't speak. फिर मैंने सोचा कि बाकी सब तो बाद में होगा, एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू टेल मी कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं इसको आवाज के लिए पहले हीलिंग देती हूँ। I started healing his throat. I put my hand on his throat, one on his head, and I started praying कि बाबा आपने जो करना है करो। एक बार, दो बार, तीन बार, I used to go alternate days. 3-4 बार मैं ऋषि के पास गई, मैंने बहुत प्रे किया। जब मैं प्रे करती थी तो मैं ऐसे बोलती थी, ऋषि बाबा बोलो। Remember ऋषि? बाबा बोलो। He would say, not audible, सुनाई नहीं पड़ता था। फिर और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बेचारा इतनी कोशिश करता था, कभी इधर से हिला, कभी उधर हिला, जोर लगा के, सिर भी कंट्रोल में नहीं है, फिर भी ट्राइंग, आवाज ही नहीं। फिर एक दिन लगा मुझे सुनाई दे गया। Then I called आंटी, आंटी ऋषि बाबा बोलो। इसने बोला, मैंने कहा आपने सुना? दोनों ने कहा नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई सुन ही नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है। और मुझे बाबा पे गुस्सा है कि मैंने तो बोला नहीं था मुझे करना है, अब जब मैं कर रही हूँ तो ये बोल क्यों नहीं रहा, अब बुलवा क्यों नहीं रहे हो। तो 3rd-4th डे की बात है, I went home and I was very angry with Baba and I was very pained also। उसको देख देख के ना दिल टूट जाता था रोज। I went home and I sat before Baba and I said, बाबा मुझे नहीं पता पर आज ना मैं आपके आगे बैठी हूँ जब तक ऋषि बोलेगा नहीं। आपने बोला था आई एम गोइंग टू सिट एंड चैंट। मैंने अपनी जाप माला ली और मैंने बाबा का गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया। आप सबको बाबा का गायत्री मंत्र पता है? ओम श्री श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। अब मैंने उस दिन कैसे मंत्र बोला, ओम श्री श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। गुस्सा, एंगर, ठीक करो, जोर जोर से, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 108 बार। जब तक मेरी माला खत्म हुई मैं रो रही थी, मेरा बुरा हाल था, मैं थक के सो गई। सपने में मैंने एक आवाज सुनी या आधी नींद में, जिसमें मैंने सुना किसी ने बोला, बाबा जितना याद था, ऋषि विल स्पीक। मैंने आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी बाबा ने मुझे बोला है ऋषि विल स्पीक, आप परेशान मत हो, ही विल स्पीक। अब तब जब मैंने आंटी को ये बात बोली, तब आंटी ने अंकल से ये बात बोली। अब उन्होंने मेरे से एक बात छुपा के रखी थी जो उन्होंने मुझे बताई नहीं थी। दे हैड नॉट शेयर विद मी कि डॉक्टर्स के हिसाब से मेडिकली ऋषि बोल ही नहीं सकता था जिंदगी भर। उसके गले में एक, उसके ब्रेन में देयर इज एन ऑर्गन कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, अगर वो नहीं हो तो हम बोल नहीं सकते हैं। वो सर्जरी के टाइम पे क्योंकि वो डैमेज हो गया था, इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ब्रेन, प्लस हिज वोकल कॉर्ड्स वर डैमेज, तो बोलना तो इम्पॉसिबल था। अंकल आंटी ने मुझे ये बात बताई नहीं, सोच के कि वो जो कर रही है उसे करने दो, बताते ही नहीं है कि ऋषि बोल नहीं सकता, आई शुड बी ब्रेक हर फेस। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि वो कह देते तो शायद मैं कोशिश ही नहीं। कुछ 2-3 घंटे 4 घंटे बीते होंगे, आंटी का मुझे फोन आया और आंटी जोर जोर से रो रहे थे। मैंने कहा आंटी क्या हो गया, और आंटी रोते जाए, आंटी क्या हो गया। आई थॉट ऋषि को फिर कुछ हो गया। आंटी बोलिए तो सही। तो आंटी सेड हियर स्पीक, लो बात करो। मैंने कहा पता नहीं किससे बात करा रहे। जब आंटी ने फोन दिया तो दूसरी तरफ फोन पे आवाज आई, क्या आवाज आई, क्या हेलो दीदी। Exactly like this Rishi spoke and he said, पूजा दीदी। तब आंटी ने मुझे बाद में बताया कि मेडिकली तो हो नहीं सकता। That is when my journey as a healer started. That is when I realized कि हम सबके अंदर एक बाबा की, I can't even call it a dormant energy. It is not dormant. जागरूक शक्ति है, पहचानते नहीं है हम उसको। शक्ति हम सब में है, मेरे में कुछ ऐसा अलग नहीं है जो आप में नहीं है या जो औरों में नहीं है, सब में है, हम उससे सिर्फ निकालते नहीं समझ। ऐसे मेरी हीलिंग जर्नी शुरू हुई एंड नाउ वेरी क्विकली अबाउट हाउ द जर्नी कंटिन्यूड। एज अ हीलर
मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आने लग गए, आपको पता है लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं मना करने लगी लोगों को कि सॉरी मैं नहीं कर सकती। आई रियली फेल्ट बैड। फिर मैंने बाबा से लड़ाई फिर शुरू कर दी कि मैंने तो आपसे मांगा नहीं था हीलिंग एनर्जीज, आपने अपनी मर्जी से मुझे दिया। अब अगर आज वही हीलिंग एनर्जीज को मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ, व्हाट इज द यूज? एक को, दो को, चार को ठीक कर भी लिया, बाकी सबका क्या? या तो वापस लो ये शक्ति, या तो मुझे रास्ता दो कि मैं सबको ठीक कर सकूं। बहुत अजीब बात है, मैंने बाबा से मांगा। मैं गणपति को हमेशा राखी बांधती हूँ बचपन से। हमारा भाई नहीं है, 2 बहनें हैं, सुमित्रा है, राखी तो गणपति। मैंने गनु भैया को बोला राखी के दिन, उन्होंने बोला क्या चाहिए राखी के बदले में। मैंने कहा आज तक तो सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगी है, बाबा से भी कह रही हूँ, आपसे भी कह रही हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ कि ये जो हीलिंग एनर्जीज है दुनिया तक जाए, मेरे तक ना रहे। वो यूज अगर मैंने यूज ना कर पाऊँ। सेम नाइट, आई डो नॉट नो व्हाई, मुझे ये रेकी का वर्ड मेरे दिमाग में गूंजने लग गया। मुझे नहीं पता था रेकी क्या है, आई हैड नो आइडिया। रात रात में रेकी चलता रहा। मैंने अगले दिन पता लगाना शुरू किया रेकी कहाँ से सीखी जाती है। मुझे कोई टीचर ही नहीं मिल रहे थे, सब लोग बहुत प्रोफेशनल टाइप के लोग, वेबसाइट से मेरी फेस नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। इस बीच मैंने एक अपने पुराने नेबर से पता किया। मैंने उस बच्चे को फोन करके बोला, बच्चे आपकी मम्मी के से मैंने कभी ये वर्ड सुना है रेकी, उनको रेकी के बारे में कुछ पता है? ही सेड मेरी मम्मा तो खुद ही रेकी मास्टर है। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो आई स्पोक टू हिज मम्मा, आई सेड आंटी आप मुझे रेकी सिखाओगे? तो शी सेड नो नो नो, आप तो इतने साल से हीलिंग कर रहे हो, आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं अपनी गुरु से बात करती हूँ। उन्होंने अपनी गुरु को फोन किया। फोन करके आंटी ने मुझे कहा गुरु ने लोगों को सिखाना बंद कर दिया है। शी हैज सेड कि मैंने अब मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब और नहीं सिखाऊंगी। मैंने बोला आप पूछो तो सही। शी सेड नहीं सिखाएंगे, ऐसा पता करें। शी कॉल्ड अप। तो उन्होंने मेरे बारे में गुरुजी को बताया। तो गुरु माँ ने ये बोला कि उनको साईं बाबा से एक डायरेक्शन थी कि एक लड़की आपके पास आएगी जिसने 8-10 साल से हीलिंग करी होगी और वो आपकी लास्ट बुक है, उसके बाद मत सिखाना। So she welcomed me. It was like a master plan unfolding. I went, I learned my Reiki. So I learned Reiki and then I asked Baba कि जब आप हैं तो मुझे ये जापानीज Reiki क्यों सिखा रहे हो आप? I would rather be healing through your energies. तब मैं Reiki का मतलब है यूनिवर्स, कॉस्मोस, गॉड, ईश्वर। ही का मतलब है एनर्जी, गॉड एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। इस तरह हम इन 2 वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं। इस तरह मेरी टीचर ने मुझे सिखाया, मेरी गुरुजी ने सिखाया। मैं तब समझी ही नहीं कि मेरे लिए ईश्वर, गॉड, कॉस्मोस, यूनिवर्स सब कुछ तो बाबा है। तो मेरे लिए वो क्या बन गई? बाबा एनर्जी, बाबा की शक्ति। मैं ये बात समझी ही नहीं पहले। अब जब मैंने लोगों को हीलिंग सिखाना शुरू किया, हीलिंग सिखाई नहीं जाती है, इट इज नॉट टॉट। रेकी इज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। शक्तिपात समझते हैं आप लोग? गुरु अपनी शक्तियां शिष्य को दे देता है। गुरु हमारे बाबा, शिष्य आप में से जो रेकी सीखता है। मैं सिर्फ चैनल, मैं वो पाइप जिसमें से बाबा गुजर के आप तक पहुंचते हैं। सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अट्यूनमेंट। उसमें जब हम किसी को भी रेकी सिखाते हैं, अट्यूनमेंट देते हैं, आप जब अंदर जाते हो तो आप नॉर्मल जैसे अभी हो वैसे हो। उसी 15-20 मिनट के बाद जब आपके अट्यूनमेंट या शक्तिपात या इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है, आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस पे चले जाते हो। यू राइज अप टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। हमारे आसपास जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं वो हर टाइप की हैं। कुछ है जो बिल्कुल उस फ्रीक्वेंसी पे है जिसपे नॉर्मल लोग जी रहे हैं, कुछ है जिसपे साधु संत सात्विक लोग जी रहे हैं। तो सिर्फ अट्यूनमेंट के थ्रू ही आपकी एनर्जीज बदल जाती है, राइज टू वेरी हाई एनर्जीज। आपका भगवान से, ईश्वर से कनेक्ट बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाती है। आपके अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद हील होकर ठीक होने लगती है, अपने आप सब कुछ ठीक होने लगता है। एंड आई डू नॉट नो कि बाकी हीलर्स जो वर्ल्ड में है जो रेकी करते हैं उनको इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, पर क्योंकि हम बाबा की हीलिंग करते हैं, मुझे बस इतना पता था कि मुझे हीलर्स बनाने और लोगों की मदद करनी है।
पर जो आपको राघव जी ने भी बताया कि एक साल में 360 हीलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आजकल तो इस दुनिया में एक भी कोई कुछ कर ले तो बड़ी बात होती है। 360 ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हीलिंग में, जो पूरे सेवा भाव से जान लगा के हीलिंग कर रहे हैं। अभी श्वेता ने आपसे शेयर किया, श्वेता ने, राघव जी ने जो एक अजय का आपको इंसिडेंट बताया, वो लड़का काम करता है, ही इज अ वर्किंग बॉय, उसके बावजूद वो एक घंटा रोज विदाउट फेल यूज्ड टू गो टू देयर हाउस टू हील आरव। उसने कभी नहीं बोला मेरा जॉब सफर कर रहा है, मेरा करियर सफर कर रहा है। तो हमारे जितने भी हीलर्स हैं, दे आर ब्यूटीफुल पीपल, उनके अंदर से बाबा बह रहे हैं। सर, टू मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टू स्किन डिजीजेस, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं लग रही है। जॉब में तो बहुत मजा आता है, जब कोई आता है तो जॉब नहीं होती है, उसके बाद वापस आके कहते हैं हीलिंग चाहिए, क्या हुआ, एक हफ्ते में या 10 दिन में 5 ऑफर है, कौन सा लेना है समझ नहीं आ रहा। ये बहुत केसेस में होता है कि उनको चूज करने में मुश्किल हो जाता है, इतने जॉब मिल जाते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में, हर चीज में ईश्वर की शक्ति है, उसको आप जिस तरफ चैनलाइज करोगे वो हेल्प करेगी। और जो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप लोग जब यहाँ से सेशन खत्म होगा, ये टॉक खत्म होगी, आप बाहर जाके मिलिए इन सबसे जो मैंने आपको पहले मिलाए हैं, लक्ष्मी, कौशल्या माँ, ये सब हमारे हीलर्स हैं। श्वेता खुद लेवल 2 हीलर है। और तो मैं क्या बताऊँ, एवरीबडी, देयर सो मेनी सिटिंग हियर, और इनमें से हर इंसान ने इतने लोगों की मदद करी है जस्ट टू इमर्ज आउट ऑफ देयर डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स। तो ये एक सेवा भाव है। अगर हमारे अंदर किसी को मदद करने की इच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। Can I continue? Yes. So I'll share one or two healing experiences with you before I go to Baba's messages quickly. हमारे हीलिंग में ऐसा होता है, 2 टाइप की हीलिंग होती है। एक हैंड्स ऑन होती है, जब हम पेशेंट के ऊपर हाथ रख के प्रे करते हैं। एक डिस्टेंस होती है, जिसमें हम अपने घर में बैठ के प्रे करते हैं, और जो जहाँ कहीं भी है पूरे वर्ल्ड में, वो वहाँ ठीक हो जाता है। दैट इज द मैक्सिमम जो हम करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग। मैं आपको एक बाबा के कृपा का एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एक लेडी बैंगलोर की है, विद्या नाम है उनका, वो भी हमारे ग्रुप में कनेक्टेड है, हील द वर्ल्ड में। हीलर नहीं है वो। विद्या को बहुत फेसबुक, ऑन माई साई बाबा स्टिल अलाइव का जो हमारा ईमेल आईडी है, बहुत चिट्ठियाँ लिखी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूँ सब नहीं पढ़ पाती, बहुत मैसेजेस छूट जाते हैं। उनकी कुछ बाबा की मर्जी होगी, आई नेवर रीच्ड हर मैसेज, पढ़ ही नहीं पाती थी, मुझे नहीं पता था वो मुझे लेटर्स लिख रही है। फाइनली उसने बुक पढ़ी हुई थी मेरी, उसने सोचा दीदी नहीं मिल रही है तो नेक्स्ट कौन, नेहा, दीदी की सिस्टर, वो भी तो फेसबुक पे होगी। शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर नेहा ऑन फेसबुक। उन्होंने ढूंढ के नेहा को चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी कि प्लीज हेल्प मी। नेहा ने फटाफट पढ़ ली। इन्होंने बोला प्रे करो, बाबा पे फेस रखो, बेबी होगा, डोंट वरी। लेट हो गया इसका मतलब थोड़ा ना बच्चा नहीं होगा। काफी देर नेहा उससे टच में थी। इवेंचुअली उनको सच में उन्होंने कंसीव कर लिया, एंड इट वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर। शादी के 7-8 साल के बाद में शी कंसीव्ड द चाइल्ड। उनके हस्बैंड के साथ तो उस बच्चे की हार्ट बीट डिटेक्ट होना बंद हो गई, दे वर नॉट बीइंग डिटेक्टेड। वक्त चलता गया, बच्चे की हार्ट बीट डॉक्टर्स को फील नहीं हुई। उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, हार्ट बीट फील नहीं हुई। डॉक्टर्स वर वेरी स्केर्ड, दे सेड कि वी मे हैव टू अबॉर्ट द बेबी, बिकॉज जब हार्ट बीट ही नहीं है तो प्रेगनेंसी को आगे ले जाने का तो फायदा नहीं है, इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब एक लेडी जिसको 7-8 साल के बाद बच्चा मिला है, वो भी इतना प्रेशर है उस पर, सोशल प्रेशर। हमारे कंट्री में लेडीज पे इतना सोशल प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है बच्चे के लिए, इतनी वो प्रॉब्लम में थी। उस टाइम पे अगर कोई बच्चा नहीं आता तो उनकी लाइफ को क्या हो जाता, एंड हाउ एज अ मदर शी वाज फीलिंग, इट वाज वेरी सैड। शी रोट टू नेहा, दीदी हेल्प मी, दीदी, रोते रोते। तब तक इनको नेहा का फोन नंबर मिल गया था। सो शी स्टार्टेड राइटिंग, दीदी प्लीज मेरे को हीलिंग दे दो, प्लीज मुझे हीलिंग दे दो। अब हमारे हीलिंग में ऐसा, अगर हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हम उनका अगर दुख या तकलीफ दूर कर रहे हैं, तो उस दुख तकलीफ की वजह क्या है। हर दुख तकलीफ की वजह क्या मानते हैं हम लोग, कर्मा। जो कर्म हमने किए हैं उसकी वजह से आज हमें तकलीफ है। तो अगर
हम हीलर्स किसी का दर्द दूर करते हैं तो हम एक्चुअली लगता है कैंसर पे वर्क कर रहे हैं या सिर दर्द या पेट दर्द ठीक कर रहे हैं, एक्चुअली तो हम उनका कर्मा हील कर रहे होते हैं। अब फिर हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है, हिंदू रिलीजन में भी लिखा है और अब तो मेडिकल साइंस भी मानने लगी है और बाकी रिलीजन में भी अगर आप डिटेल्स में जाओ तो सब जगह ये फाइंडिंग है। ऐसा माना जाता है कि एनी सोल विच इज बॉर्न ऑन दिस अर्थ, आने से पहले वहां पूछा जाता है कि अब वक्त आ गया है कि आप जाओ, अब आप पीछे देखो आपने क्या क्या कर्म किए हैं, हमें दिखाए जाते हैं। हम वो देखते हैं, करे बाप ने हमने इतना बुरा किया है, ये चीज नहीं करी, वो एवरी सोल चूजेस इट्स जर्नी। हम बोलते हैं हमें इस परिवार में पैदा होना है, हमें ये माँ बाप चाहिए जो जो है उस टाइम पे उस दुनिया में, हमें इनके साथ रहना है। और कोई कहता है भगवान जी मैंने इतना बुरा किया है, मुझे तो 100 जन्म लग जाएंगे इसको काटते काटते, आप मुझे गंदी से गंदी बीमारी दो, इसी जन्म में खत्म कर दो। कोई कहता है, आपने देखा छोटे बच्चे पैदा होते हैं तकलीफ के साथ, ब्रेन ट्यूमर्स पता नहीं क्या क्या, 2-3 साल तक जीते हैं और फिर चले जाते हैं। वो भी सोल की चॉइस है कि मैं बचपन में ही झेल के खत्म करके वापस आना चाहता हूँ। कोई कहता है मुझे बुढ़ापे के आसपास दीजिएगा भगवान जी, नॉर्मल लाइफ जी के फिर आऊंगा। ये हम पसंद करते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। भगवान नहीं कहता मैं तुम्हें कैंसर बांट रहा हूँ या ट्यूमर बांट रहा हूँ, ये दिस इज अ सोल्स चॉइस। इंटरफेयर कर रहे हैं, उसका कर्मा है, वो उसकी सोल ने चूज किया था कि मुझे सफर करना है, हम वहां पे जाके उस सफरिंग को दूर कर रहे हैं। तो हमें पहले तो उसकी परमिशन चाहिए होती है, ही हैज टू से मेरे कर्मा में आप इंटरफेयर कर सकते हो, मतलब उनको हम ये नहीं बताते बट दे जस्ट से कि हाँ आप हमें ठीक करो। अगर वो सोल जिसने डिसाइड किया था मुझे कैंसर से सफर करना है अब नहीं सफर कर पा रही, झेल नहीं पा रही है, तब वो हमारे पास पहुंचेगी, देन वी विल हेल्प दैट पर्सन। अब उस टाइम पे जब हम हीलिंग देते हैं, अगर हम कुछ वापस ना लें तो सबसे पहले तो उसकी तकलीफ ही हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए कुछ लेना बहुत जरूरी होता है हीलर्स, चाहे हम एक फूल ही ले लें या एक ग्लास पानी पी लें, वो हमारे अपने मन की चॉइस है पर लेना जरूरी है। सो नेहा नोज दिस रूल। अब नेहा को उसने बोला दीदी मुझे हीलिंग दो, अब नेहा बिना किसी चीज के तो हीलिंग कर नहीं सकती, दिस इज अ प्रॉब्लम। टाइम भी कम था, 1 हफ्ता बचा था एंड डॉक्टर ने कहा था कि लास्ट अल्ट्रासाउंड को अपॉर्ट द बेबी। तब उन्होंने नेहा को कांटेक्ट किया। नेहा ने विद्या को बोला प्लीज सेंड मी अ पिक्चर ऑफ बाबा, आप मुझे कुरियर भेज दो बाबा की फोटो, मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ। नेहा ने मुझे कुछ नहीं बताया, इन्होंने अपनी तरफ से एज अ हीलर शी डिसाइडेड एंड शी स्टार्टेड हीलिंग हर। 1 दिन 2 दिन हीलिंग दी इन्होंने। शाम को जब हीलिंग देती थी नेहा अपने घर से, जो हीलर है जो विद्या थी, शी यूज्ड टू टेल हर आप बोलते थे लेट जाओ, हम लोग शांति से बोलते हैं लेट जाओ ताकि हीलिंग की पूरी एक्सेप्टेंस हो। सो पीपल लाई डाउन व्हाइल वी हील देम। नेहा रोज मैसेज करती थी विद्या नाउ लाई डाउन, फिर नेहा करती थी हीलिंग कंप्लीट, ऐसे करके रोज। इस दौरान नेहा ने मेरे से ये सब शेयर किया जो चल रहा था कि दीदी ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आई थी, आई एम हीलिंग हर। आई गेट कंसर्न व्हेन माय हीलर्स डू हीलिंग विदाउट टेकिंग एन, वी कॉल दैट एनर्जी एक्सचेंज, कुछ लेना जरूरी है। आई आस्क्ड हर व्हाट डिड यू टेक, शी सेड आई हैव टेकन अ पिक्चर ऑफ बाबा, ऐसे रोकी गुड। लास्ट रात की फ्राइडे नाइट, सैटरडे को उसका अल्ट्रासाउंड था। नेहा भी मम्मी है, इसकी भी छोटी सी बिटिया है साइशा। एज अ मदर्स हार्ट नोज द पेन ऑफ अनदर मदर, उस रात को ये बहुत ज्यादा अपसेट हो गई ना, वो होगी कि बाबा कल का दिन है, अगर वो बच्चे की हार्ट बीट वापस नहीं आई तो हम क्या करेंगे, क्या होगा विद्या का। प्रे करते करते रोते रोते कि बिल्कुल मेडिटेशन में जब नेहा प्रे कर रही थी आंखें बंद में, अचानक इनको एक विजुअल हुआ। वी गेट विजन्स, हम सब हीलर्स को विजन्स होती हैं। शी सॉ कि जो ये हीलिंग दे रही है विद्या लेटी हुई है और उसके बेड के साइड पे बाबा खड़े हुए हैं एंड शी केप्ट सीइंग कि बाबा क्या कर रहे हैं, एंड ये यहाँ से रो रही है बाबा गिव द बेबी हार्ट बीट्स, गिव द बेबी हार्ट बीट्स। तब इसने देखा कि बाबा ने विद्या के पेट को ऐसे हाथ लगाया। इस पे ये रोते रोते उठ गई हीलिंग करते करते एंड शी मैसेज विद्या आफ्टर कंप्लीटिंग हीलिंग डन, ब्यूटीफुल हीलिंग डन। विद्या ने जवाब नहीं दिया, रोज तो वो इमीडिएटली कहती थी थैंक्स दीदी, इसने फिर थोड़ी देर बाद मैसेज किया, फिर नो रिप्लाई। करीबन आधे घंटे के बाद में विद्या का वापस इसको फोन आया, दीदी वेरी सॉरी, फर्स्ट टाइम इन द हीलिंग आई फेल अस्लीप, मैं सो गई थी इसलिए मैंने आपका अभी नींद खुली मेरी। तो नेहा ने बोला कोई बात नहीं, इट्स गुड टू स्लीप ड्यूरिंग हीलिंग।
तो नेहा ने बोला अच्छी बात है, अगर आप सोगे उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शी सेड नहीं दीदी, मुझे आपको और भी कुछ बताना है। क्या बताना है? पता नहीं, बड़ा अजीब सा सपना देखा मैंने सोते सोते। क्या देखा आपने? मैं सोई हुई थी दीदी, तो बाबा मेरे बेड के पास आके खड़े हो गए और हाथ बढ़ा के उन्होंने मुझे कुछ दिया, पर क्या दिया मैं समझ नहीं पाई। तो वो तो समझ नहीं पाई, नेहा का दिल और धड़कने लग गया कि ओ माय गॉड, उसने भी वही देखा जो मैंने देखा। तो आई डोंट इवन हैव टू टेल यू कि जब अगले दिन टेस्ट हुआ तो द बेबीज हार्ट बीट्स वर बैक। ये नेहा ने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, करने वाले बाबा ही हैं। हम सिर्फ आंखें बंद करके इनमें लीन हो जाते हैं, कर बाबा जाते हैं। So we have to understand कि whatever is happening around us is all Baba's grace. This beautiful girl Shweta sitting here, मेरे पास एक बहुत ही difficult case आया, फ्लावर फोबिया। कभी सुना भी नहीं है लाइफ में कि किसी को फूलों से डर लगता है, आपने सुना है कभी? फ्लावर फोबिया। हांगकांग में एक लेडी थी, उनकी बेटी, कि उसको फ्लावर्स से डर लगता था, और फूल अगर किसी के कपड़ों पे भी फूल बने हुए दिख जाएं तो उसको फिट्स आने लगते थे, घबराहट से रोना शुरू कर देती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल नहीं जाती थी। अब मुझे समझ नहीं आया इसको क्या करें। तो मैंने श्वेता को बोला, श्वेता एक केस ले लोगे? ये पूरे फेथ के साथ की दीदी ने बोला तो मना नहीं है, इन्होंने हाँ कर दी। इन्होंने जो उस बच्ची को हीलिंग दी, वो बच्ची आज फ्रॉक्स पहनती है फूलों वाली। ऐसे बहुत केसेस हैं, मतलब पूरी रात निकल जाएगी अगर मैं चलती रहूं। ऋषि जैसा एक और केस हमारे पास आया, उनको लक्ष्मी ने ठीक किया। डिट्टो ऋषि का केस, वो बच्चा ना बोल सकता था ना वो चल सकता था, उसको साइड लीड करनी थी और अब मैं चल ही नहीं सकता। हीलिंग दी, उस बच्चे ने परेड लीड भी की, हमें वीडियो भी भेजा। सच अ प्राउड मोमेंट, यू नो, व्हेन यू सी ऑल दीस थिंग्स। So all I want to share is कि आप सब औरों को करने के लिए करें ना करें, healers are happy people, we are happy people, हमें कुछ नहीं होता। अगर हमें कुछ, पहली बात तो हमें हमारे ऑरास, हमारे चक्रास इतने स्ट्रेंथन हो जाते हैं हमारे अचीवमेंट्स में कि वी कैन हैंडल एनीथिंग। लोग डरते हैं, घबराते हैं। जब लोगों को स्वाइन फ्लू होता है तो लोग बोलते हैं बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, हाथ मत मिलाओ। हम तो गले भी मिलते हैं क्योंकि हमें पता है कि ही इज आवर प्रोटेक्शन, वी आर हीलर्स, वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर चोजन पीपल, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि बाबा ने हमें चूज किया दूसरों को ठीक करने के लिए। और हम हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर्स के पास भागते हैं, अगर उसकी जगह हम अपने घर में खुद ही बच्चों को ठीक कर लें। अब तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर है, उनके बच्चे को एपिलेप्टिक अटैक्स आते थे, रोज एक अटैक आता था, स्टेरॉइड्स पे था बच्चा, नहीं रोक पाते थे अटैक्स। हीलिंग सीखने के लिए आई डॉक्टर अनुराधा, इनमें से काफी लोग जानते होंगे। एंड जिस दिन हीलिंग सीख रही थी, यहाँ पे अट्यूनमेंट खत्म हुई, वहाँ पे बच्चे को अटैक हो गया, जोर जोर से रोने लगी, दीदी मेरे बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो। ऐसे दीदी बच्चे को नहीं बचाएगी, यू आर द मदर, यू आर अ हीलर, वो हील योर चाइल्ड। उन्होंने बच्चे को रात को उसी दिन जाके हीलिंग स्टार्ट करी। 1.5 साल हो गया उस बच्चे को, आज तक एक अटैक नहीं आया। और हमारे लिए रेकी या हीलिंग प्रोफेशन नहीं है, हम इसे ना पैसों के लिए करते हैं, ना इसमें से हमारी कोई कमाई है, ये हमारी सेवा है। हमें ये करना है ताकि हम दुख दर्द कुछ बाबा के नाम से कम कर सकें, लोगों तक बाबा को और इनकी शक्तियों को पहुंचा सकें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ग्रेस है बाबा की। व्हाटएवर लिटिल वी कैन डू, वी आर डूइंग इन आवर वे। So that is about healing. If you have questions, I will answer later. And before I wind up now, because I should not take very long, I have some messages of Baba to share with all of you, which I have learned in my journey with Baba. वैसे तो बाबा सबके साथ है, इससे बाबा के लिए कुछ सिखाने वाली मैं कौन होती हूँ, पर क्योंकि बाबा ने मुझे तो बहुत सुंदर बातें सिखाई हैं। एक बात तो मैं सबसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी जगत में, I don't know how to say this in Hindi, but on this earth and in the entire cosmos and the universe, wherever it exists, please remember there is only one Sai Baba and he is our Sai Baba. Please remember that. मुझे दुनिया भर की ईमेल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, लोग मुझे चिट्ठियां लिख के बोलते हैं, दीदी इस सिटी में जरूर आइएगा, आपको पता है बाबा ने पुनर्जन्म लिया है।
कोई कहता है बाबा है रीइंकार्नेटेड, कोई कहता है इस शहर में बाबा की शक्तियों का आपने आभास नहीं किया, यहाँ पे तो माँ के रूप में बाबा है, वहाँ इस इंसान के रूप में, उस इंसान के रूप में। मुझे ना सच्ची बोल रही हूँ आपसे, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आता है उस टाइम पे। दैट्स द राइट भाव आई एम यूजिंग। उस टाइम पे मुझे ना बहुत बुरा लगता है। आप किसी इंसान में अपने ईश्वर को ढूंढ रहे हो। कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान इस दुनिया में बाबा हो सकता है क्या? Why do we seek our बाबा in human beings? क्यों हमें जरूरत है इंसानों के आगे झुक के उनको भगवान बनाने की? बाबा ने कोई कमी छोड़ी है? बाबा हमें देते नहीं जो हम उनसे मांगते हैं। बाबा हमारे साथ नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बाबा साक्षात खुद हर पल हमारे भीतर हैं, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम। उसके बाद भी मुझे बहुत दुख है, मैं एक संत ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई चाहिए जो मुझे बाबा तक पहुंचा दे। अरे बाबा खुद हाथ पकड़ के साथ पहुंचाते हैं। क्यों चाहिए किसी को कोई? मेरे पास इतने लोग आते हैं, दीदी बाबा आपके अंदर रहते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। अरे वो आपके अंदर भी उतना ही रहते हैं, आपकी प्रार्थना भी उतनी ही सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के लिए प्रे करने में कोई आपत्ति है या मुझे तकलीफ है, पर जब वो आपके साथ है, व्हाई डू नीड पीपल, व्हाई डू नीड टू डिपेंड? तो पहले सबसे तो आप लोग प्लीज ये जो इतने सारे बाबा दुनिया में बन गए हैं ना, इनके पास जाना बंद कर दो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक ही बाबा है, वो हमारा बाबा है। दूसरी बात, बाबा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम खाएं पिए सोएं और 5 मिनट मंदिर में सुबह घंटी बजाएं और एक दिया जलाएं, फिर ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताएं और लास्ट में मर जाएं। इससे नहीं भेजा गया हमें इस दुनिया में। हर इंसान के जीने का एक मकसद होना चाहिए। There should be a purpose of our lives. There should be a purpose why we are alive. If we have no purpose, why are we alive? हम जीवित ही क्यों हैं? सांस लेने के लिए थोड़ा जी रहे हैं। बाबा जब जीवित थे वो क्या करते थे पूरा दिन? कभी सोचा आपने? कोई तकलीफ में आता था उसकी मदद करते थे, किसी को आंखें नहीं थी तो आंखें दे देते थे, कोई चल नहीं सकता था तो पैर ठीक कर देते थे, कोई दुख में आता था तो उससे बात करके उसका दुख दूर कर देते थे। जब हमारे बाबा ये सब करते थे, हम क्यों ये सब नहीं कर सकते अपनी लाइफ में? क्यों हम अपनी जिंदगी में जीते जा रहे हैं अपनी लगन में, अपने with no realization that there is more to our life than just that. बाबा ये चाहते हैं कि हमें से हर इंसान बाबा बने, और बने क्या? हम सबके भीतर बाबा है। आपके अंदर जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा में लीन है, वो जुड़ी हुई है, बाबा कहीं बाहर नहीं है। आप लोग हर हफ्ते मंदिर आते हैं, बाबा के आगे माथा टेकते हैं, तो बाबा को मंदिर में छोड़ के घर जाते हैं कि साथ लेके जाते हैं? साथ लेके जाते हैं। बाबा हमारे अंदर है, ही इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। बाबा सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप मंदिर आओ और एक घंटी बजा के चले जाओ। आप मंदिर आओ, सेवा करो, पता करो किसकी क्या मदद हो सकती है, कहाँ पे क्या कोई तकलीफ में उस तक पहुंचो, और ये मत सोचना कि उसके लिए पैसे चाहिए। ये बड़ी गलत सोच है। दीदी मेरे पास तो इतना होता तो मैं क्या कर देता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने खाने में से आधी रोटी किसी को दे दो। कोई तकलीफ में चल के जा रहा है, अपनी चप्पल ही उतार के उसे दे दो कि वो नंगे पैरे ठंड में। ये दिल से चीजें होती हैं, ये पैसे से नहीं होती हैं। अगर पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुल के करिए। अगर नहीं है तो भाव तो हो करने का। और मुझे आज सुन के चले मत जाइएगा कि अरे हाँ बहुत अच्छा, आज एक दीदी आई थी, बड़ी अच्छी बातें करती थी। दैट इज मच शेयर विद ऑल ऑफ यू आल्सो। बाबा ने मुझे बोला कि जब आप किसी को फूल अर्पण करते हो, आप लोग बाबा के मंदिर जाते हो, बाबा के लिए फूल लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं? लेके जाते हैं ना। तो जो आप सड़क पे चल रहे हो और कुछ फूल लोगों से गिर भी जाते हैं सड़क पर, जिसके ऊपर से हम चल के निकल जाते हैं, क्या आप उस फूल को उठा के अंदर मंदिर में बाबा को अर्पण करते हो? कर सकते हो। आपने किसी को दर्द पहुंचाया, एक पंखुड़ी काली, आपने किसी को कष्ट दिया, एक और काली, आपने ईगो रखी अपने में, मैं, तो 4-5 काली, आपने किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे दिया, दर्द दे दिया, तो बहुत सारी काली उस 1000 पंखुड़ी में। बाबा कहते हैं जब इस संसार से जाओगे तो उस फूल के रूप में मेरे पास पहुंचोगे। इस तरह समझो इस बात को, ना कि एक फूल जाने वाला है, पर अगर हम समझना चाहें, बाबा ने मुझे बोला कि जब वो फूल मेरे पास पहुंचेगा, मैं वहां होऊंगा सामने आपके उस दुनिया में, फिर भी वो फूल मेरे चरण के पास नहीं जा पाएंगे शर्मिंदगी में, एक शेम दैट बाबा आई एम अ बैड फ्लावर, मैं वैसा फूल हूँ जो सड़क पे पड़ा हुआ था, मैं कैसे अपने आप को आपके आगे अर्पण करूँ?
मैं तो तभी अर्पण हो सकती हूँ अगर मैं एक सुंदर फूल हूँ। उस सुंदर फूल, that flower, that beautiful flower, you have to make yourself. जितने आप अच्छे सोचोगे, अच्छी बातें करोगे, अच्छे कर्म करोगे, वो फूल आप बनते जाओगे। जितनी बार बुरा करोगे, बुरे बनते जाओगे। और ये जो ईगो है ना, बड़ी गंदी चीज है। हम हीलर मानते हैं कि जितने हम हम्बल हैं, उतना अच्छा हमारा हीलिंग होगा, क्योंकि हम स्वच्छ हैं, अंदर से प्योर हैं। बाबा तो बाबा थे, उनमें ईगो नहीं थी, तो हम हैं कौन ईगो रखने वाले? Who are we to say I am so and so? I am nobody. I am not even the dust of his feet. What do I call myself as an I? There is nothing that I am. The day you remember that, life will really change. तो पहली बात तो इस ईगो को, गंदगी को छोड़ के अपने आप को स्वच्छ फूल की तरह बनाइए, जो बाबा के चरणों में जा पाए। अच्छे कर्म करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते, कम से कम बुरा मत करिए। At least be those good beautiful flowers, and each of you within, bring out that Baba within you, bring out that goodness within you, and the world will be so much more beautiful. तो बस ये याद रखना, एक कहते हैं ना ओम साई, उसको बना देना आई एम साई। हर इंसान अगर साई बन जाए छोटा छोटा, तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। तो ओम साई की जगह आई एम साई। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं अभी 2, 4, 5 घंटे बोल सकती हूँ, पर अब इसे रोकेंगे यहीं पे, क्योंकि आप सबको भी घर जाना है, बहुत ठंड होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और मैं फिर आती रहूँगी, ये मेरा घर है। जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई
I was in a trance, so when I'm in a trance, my hands, feet become like Baba's. So I was sitting like this. Lakshmi was with me that night, so she has seen this. जब मुझे होश आया, कुछ मुझे याद था, कुछ इन्होंने मुझे बताया. बाबा की उंगली ऐसे थी. बाबा ने कहा, ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, ईसा, 4 नाम, एक रोशनी, एक शक्ति, 1 एनर्जी, 1 लाइट, सबका मालिक ये तो हमें पता है. फिर बाबा ने बोला 1 लाइट, 1 एनर्जी, कृष्णा. कृष्णा कौन? विष्णु. विष्णु कौन? फिर ऐसे उंगली घुमाई और बोला चक्र किसकी उंगली पे है? तुम सब मेरी उंगली देखते हो, चक्र नजर नहीं आता तुम्हें. विष्णु कौन? बाबा साईं. Remember this, the king of the world, the king of the universe, the man with the chakra is our Sai Baba. Om Sai Ram.